Hello and welcome aspirants. How are you all doing? I hope you all are engaged in your studies and preparing for SEBI exam. From today onwards, live classes for SEBI exam have started. So join them and boost your preparation. And don't forget to share this news with others. In this session, we would be preparing for a English section of phase 1 of SEBI exam. English skills are going to be the key skills for this SEBI exam. So we would have to keep that in mind and prepare accordingly. And for this, we need to focus on strengthening our vocab, and we shall start with synonyms and antonyms, the meaning of their words, as well as we shall be learning how to use these unfamiliar words into meaningful sentences. This class would be bilingual, that is in Hindi and English, so that everyone could easily grasp the meaning of unfamiliar words easily. So, what are we waiting for? Let's start this session. We shall begin this class with a famous quote by Evelyn Waugh. He says, "One forget words as one forget names. One's vocabulary needs constant fertilizing or it will die." जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में कई लोगों से मिलते हैं और उनमें से अधिकतर लोगों के नाम हम मेल जोल के अभाव में कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह नए शब्द जिनको हम अक्सर याद करना भूल जाते हैं वह भी हमसे अजनबी हो जाते हैं। इसलिए हमें शब्दों के साथ मेल जोल बना कर रखना चाहिए। सो विद दिस कोट लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड our first word is abode. A-B-O-D-E, abode. Abode actually means the place where you live, the place where you reside, or the place where you have been for a long time. यानी कि आपका घर, आवास या कोई ऐसा स्थान जहां आप निवास करते हो उसे हम abode कहेंगे. Let's have a look at couple of examples to clearly understand the meaning of abode. The example here says, I went round the streets and found his new abode. So, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कि मैं सड़क पे से जा रहा था और वहाँ मैंने उसका नया आशियाना देखा। तो यहाँ abode का इस्तेमाल किसी के आशियाने को बताने के लिए किया गया है, as you clearly understand from this example. Let's have a look at another example. We also have an abode of evil, which is just a room painted red. हम सभी में बुराई निवास करती है जो कि एक लाल रंग से पुता हुआ कमरा है, यानी कि वह जगह खतरों का घर है. So I think you are getting the meaning of abode. Let's have a look at one more example. And the example says, this is his certain permanent abode, not the passing dream of life. यह उसकी निश्चित और परमानेंट जगह है जहां वो निवास करता है, ना कि कोई सपना जो कि बस हवा हो जाता है. यहाँ पर अबाउट का इस्तेमाल किसी चीज की सर्टेनिटी को बताने के लिए किया गया है जिसके लिए वह प्रतिबद्ध है. अगर हम अबाउट के सिनोनिम्स देखें तो वह हो सकते हैं होम, रेसिडेंस, हैबिटेट, सोजन या कंटिन्यूअस. यहाँ सोजन का अर्थ है कोई ठहरने वाली जगह जहां हम कुछ देर के लिए ठहर सके या जहां कुछ देर के लिए ठहरा जा सके. ऐसी जगह को हम सोजन कहते हैं. वैसे ही क्विटेड, डिस्प्यूटेड, सन, डिपार्टेड, डिस्पाइज्ड इसके एंटोनिम्स होंगे. और इन सारे वर्ड से हमें यह पता चलता है कि कोई किसी जगह से या किसी चीज से दूर हो रहा है. ऐसे सारे वर्ड्स अबाउट के पॉसिबल एंटोनिम्स होंगे. यहाँ सन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना. एंड वहीं डिस्पाइस का मतलब होता है किसी चीज से गहरा अलगाव महसूस करना, किसी चीज से बहुत ज्यादा दूरी महसूस करना, बहुत अलग फील करना. ऐसी सिचुएशन को हम डिस्पाइस कहते हैं. नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज एंग्विश. एंग्विश एक्चुअली मीन्स extreme unhappiness caused by physical or mental suffering. It is a situation when a person is extremely unhappy about something and really sad about that.
किसी गहरी वेदना या पीड़ा या मनोव्यथा के लिए हम एंग्विश शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है और उससे क्रोधित भी होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड with some examples. And the example says, his anguish at the outcome of the court case was very clear. कोर्ट केस के ऐसे फैसले पर उसकी वेदना बहुत जाहिर थी। तो यहाँ पर एंग्विश का इस्तेमाल ऐसी फीलिंग के लिए किया गया है जहाँ आपको किसी चीज़ से बहुत बड़ा धक्का लगा हो, बहुत ज़्यादा आपको उससे पीड़ा हुई हो और आपका मन उसी चीज़ को बार बार सोचे जा रहा हो और उसी पीड़ा को बार बार महसूस कर रहा हो। ऐसी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एंग्विश वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। Another example says, in her anguish, she forgot to leave a message. वह इतने दुख में थी कि वह कोई भी मैसेज देना भूल गई। यानी कि वह बहुत दुखी, चिंतित और क्रोधित थी, इतनी ज़्यादा कि वह कोई मैसेज देना भी भूल गई। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एंड द एग्जाम्पल सेज, ही हैज़ फुलफिल्ड ऑल दोज क्वालिटीज एंड विद नो एंग्विश। उसने सारी क्वालिटीज को पूरा किया है, पा लिया है, वह भी बिना किसी पछतावे के या किसी वेदना के। यानी कि ना ही उसे इस चीज का कोई दुख है और ना ही इसके प्रति कोई गुस्सा। सो आई होप you all have got the meaning of the word anguish. Now let's have a look at the possible synonyms of anguish, and these clearly would be pain, agony, distress, suffering और torment. यहाँ torment का मतलब होता है अत्यधिक कष्ट या यातना को सहना, and the antonyms for torment would be joy, happiness, pleasure, comfort और cheer. So खुश होना या खुशियाँ मनाना एंग्विश के एंटोनिम्स होंगे। I hope you all have got this. Now let's move to the third word, and that is bacon. B-E-C-K-O-N, bacon. And the bacon actually moves to show somebody with a movement of your finger or hand that you want him or her to come closer. So it's just a gesture with your finger or hand that you are calling someone to come up. यानी कि अपने हाथों या उंगलियों से इशारा करके किसी को अपने पास बुलाने को बेकन कहते हैं। As in this example, the custom official beckoned the woman to his counter. कस्टम ऑफिशियल ने उस औरत को इशारा किया कि वह काउंटर पर आए। एंड द सेकंड एग्जाम्पल सेज, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट फॉर हुम अ वंडरफुल फ्यूचर बेकन्स। वह बहुत ही एक अच्छी स्टूडेंट है जिसे एक खूबसूरत भविष्य अपने पास बुला रहा है। लेट्स हैव एन अनदर एग्जाम्पल व्हिच सेज, ही बेकन टू मी एज इफ ही वांटेड टू स्पीक टू मी। उसने मुझे इशारा किया जैसे कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहता था। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स एज यू सी, बेकन का मतलब हम यहाँ यह समझ पा रहे हैं कि किसी को इशारा करना और उसे अपने पास बुलाना। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ बेकन, एंड दीज वुड बी जेस्चर, सिग्नल, कॉल, इनवाइट और एंटाइस। यहाँ एंटाइस का मतलब होता है किसी को अपने अटायर से लुभाना या अट्रैक्ट करना। एंड द पॉसिबल एंटोनिम्स ऑफ बेकन वुड बी टू रिपल, डिस्करेज, डिस्यूएड, डाइवर्ट और डिपार्ट। यहाँ डिस्यूएड का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी के रास्ते पे आ जाना या उसको मना करना। एंड वी आर हियर विद द फोर्थ वर्ड, and that is concussion, which means something that has been made out of several things mixed together. यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला देने पर जो चीज़ बन जाती है उसे हम कंकशन कहते हैं। किसी मिश्रण को या काढ़े को या किसी मनगढ़ंत किस्से को हम कंकशन कह सकते हैं। Let's understand this with a few examples. She drinks this herbal concussion, यानी कि वह इस हर्बल काढ़े को पीती है। यहाँ कंकशन शब्द का इस्तेमाल काढ़े के लिए हुआ है। Another example says that toxic concussion will eventually end up in the barrage, यानी कि वह घातक कंकशन या घातक मिश्रण अंत में एक बैरज में मिल जाएगा, जहाँ बैरज किसी बांध को कहते हैं।
तो यह कंकशन जो है बहता हुआ जाकर किसी बांध तक रुक जाएगा। एंड द पॉसिबल सिनोनिम्स फॉर द कंकशन वुड बी टू ब्रीव और मिक्सचर, infusion, blend or fantasy. And the possible antonyms of concussion would be to split, division, parting, materiality और reality, यानी किसी चीज से अलग होना या फिर रियलिटी का सामना करना, हकीकत का सामना करना कंकशन के पॉसिबल एंटोनिम्स होंगे। Now let's head towards the fifth and the final word for today's session, and that is culprit. A culprit is the person or thing at fault for a problem or crime. So culprit is the person that is accused for some crime. किसी अपराधी या दोषी को हम culprit कहते हैं। As the example says, police hope the public will help them to find the culprits. पुलिस को उम्मीद है कि जनता उनकी मदद करेगी दोषियों को, अपराधियों को ढूंढने में। And this example says, children in this country are getting much too fat and sugar and sweets are the main culprits. इस देश के बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं और इसके मुख्य दोषी शक्कर और मिठाइयाँ हैं, जिसके कारण वह ज्यादा कैलोरीज गेन कर रहे हैं। And this example says, two eyewitnesses identified her as the culprit. यानी कि दो प्रत्यक्षदर्शियों ने उसकी पहचान एक दोषी के रूप में की। So I hope आप सब इन एग्जाम्पल्स के जरिए कल्प्रिट का मीनिंग समझ चुके हैं। द पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ द कल्प्रिट आर लॉ ब्रेकर, ऑफेंडर, कॉन्विक्ट, फेलॉन और क्रिमिनल। वी यूज वर्ड फेलॉन फॉर अ पर्सन हु इज अ ग्रेट ऑफेंडर हु हैज कमिटेड अ सीरियस क्राइम। यहाँ फेलन हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। एंड द एंटोनिम्स फॉर द कल्प्रिट वुड बी model, hero, saint, lawman or police. So that's it for today. I hope you all have enjoyed this session and learned something new, good and grasping. If you have enjoyed this session, do not forget to like this session and share it with your friends on social media. We will meet you tomorrow for the next session in English. Till then, keep learning and keep enjoying. You can find us on YouTube using hashtag ITEV and subscribe us over there. You can also follow us on Instagram for any new notification. And as always, stay updated, stay motivated. Thank you all.